everyone. Success Tales is back again with second edition of Real People and Real Stories. हमारे सीजन 2 के पहले एपिसोड के गेस्ट हैं एक अमेजिंग पावर कपल जो कि हमारे चैनल के फर्स्ट कपल ट्रेनर भी हैं. Allow me to welcome the amazing team of OHO Radio, Uttarakhand's first digital radio station in our segment Gems of Uttarakhand. Let me introduce you to the dynamic Monica Solanki and Uttar ka Puttar Kavindra Singh, popularly known as RJ Kavya of Ek Pahadi Aisa Bhi fame. RJ Kavya OHO Radio Network के founder and CEO हैं, वही मोनिका इसकी co-founder and chief of operations head हैं. Welcome Monica and Kavya to Success Tales. Thank you so much. Thank you. Yeah. तो काव्या, आपने अपना करियर एज रेडियो जॉकी 2008 में शुरू किया. आज आपका खुद का रेडियो स्टेशन है. मेरे सबसे पहला सवाल है कि आपने कब और कैसे रियलाइज किया कि आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं? आई थिंक एक्सीडेंटली था, बिकॉज पहाड़ों से आता हूँ, बागेश्वर का रहने वाला हूँ. तो 2003-04 तक मेरी पढ़ाई वहां हुई और उसके बाद मैं दिल्ली गया था 11th-12th करने के लिए. तो जब वहां पहुंचा तो मालूम चला कि रेडियो नाम की कोई चीज होती है. नए नए प्राइवेट एफएम खुले थे. उससे पहले क्योंकि आकाशवाणी का जमाना था, 2003 के आसपास इंडिया में पहली बार जो है प्राइवेट एफएम चैनल खुलने स्टार्ट हुए. तो छुट्टियां थी, मेरी गर्मियों की छुट्टियां थी. मामा के पास रहता था, वो ऑफिस चले जाते थे. तो उन्होंने बोला कि यार ये रेडियो है, एफएम है, इस पे दिन भर गाने आते रहते हैं, लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ये सुनना टाइम पास हो जाएगा. सो जब मैं वो सुन रहा था तो सुनते सुनते ये लगा कि यार ये बड़ी कमाल की चीज है. कोई आके बोल रहा है और गाने प्ले हो रहे हैं. तो म्यूजिक का शौक था थोड़ा, तो लगा कि शायद कुछ कर जाएं इसमें. फिर 11th-12th किया, तो उसके बाद फिर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया एक तरह से. 12th के जैसे एग्जाम हुए, मैंने कहा रिजल्ट आता रहेगा. मैं दिल्ली में ही कुछ वर्कशॉप्स वगैरह इधर उधर की कहाँ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है. तो आई थिंक 2006-07 के आसपास पहली दफा लगा था कि रेडियो करना है. ये है. राइट. मोनिका, वो रेडियो शुरू करने से पहले आपने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी काम किया है, स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे. मार्केटिंग आपका फोर्टे है. आप कुछ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें और बताएं कि आखिर what was the idea behind the inception and conception of OHO Radio? Right. So basically, I'll just tell you a little bit about my background. So see, just if I talk about my childhood, because my father was in army. So we guys were mostly traveling to different places and staying, and I am educated from army school, right? So after that, when I completed my graduation, I wanted to move, to a bigger city to do my, post graduation. So I did my MBA from Bangalore, and then I started working into marketing and branding, and then I've worked with few good companies into marketing and branding, and then finally in 2018 I moved to Dehradun, and this was when the time was when Kavya said that I wanted to do that. And when I was into my this professional career stuff, I was actually looking forward to go into entrepreneurship, right? I was like done with the job. That was a phase in my life when I said, okay, I think I have already worked for 8-9 years now, and now there's a time when I should move towards entrepreneurship, right? So then, of course, we guys were dating back then, right? So obviously, हमारी काफी सारी conversations होती थी इस बारे में, कि what's like the next step, right? So when 2017 and Kavya said that maybe probably I will be moving to Dehradun. So and I was in Bangalore, that time. So then that was the time when we started, talking about ki exactly what should be the next step, right? Both professionally and personally. So at that point of time, Kavya said that this is like something I'm looking forward to do, and I thought okay, this really holds a lot of potential. Because slowly and steadily, I also started understanding, how Uttarakhand ka market is, and how exactly all the parameters ki Uttarakhand kaise kaam karta hai, right? So I saw the potential in this idea कि this is definitely work, क्योंकि हम लोग बहुत ideas के बारे में बात करते हैं, right? रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता है where you're talking about an idea, right? लेकिन एक वो होता है that there is a point, right?
जहाँ पे आके आपको लगता है कि yes, this is exactly जो we guys were looking forward for. So Right. जब ये हुआ, so this was, I think, if I'm not wrong, this was like 2000, because we started OVO Radio in 2020 and around 2019 की स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने इस आइडिया के बारे में बात करना शुरू कर दिया था. So जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा इन 20, मतलब उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे करना, जब 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन लगा, राइट, सो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे हम लोग मतलब सुबह शाम ब्रेकफास्ट में वी वर हैविंग रेडियो, लंच में रेडियो हो रहा है, डिनर में रेडियो हो रहा है, इन बिटवीन स्नैक्स में रेडियो हो रहा है. सो दैट वाज द पॉइंट, द फर्स्ट लॉकडाउन वेयर वी वर like pretty sure कि अब तो हम we are finalizing the name for a radio or a dream that we are Right. looking forward to live for the rest of our life. तो वहां से we started like going forward with the idea कि अब ये हमारे दिमाग में फ्रेम हो चुका है. So this is where we thought कि जो मेरा professional expertise है जिसकी आप बात कर रहे थे, I because Kavya is more of an artist, right? He is like the Absolutely. yes, and this is where I bring my expertise कि like marketing, branding and an operational level पे क्या चीजें की जा सकती हैं या होनी चाहिए. So this is what I take care into OVO Radio, and this is where जो मेरा 9 साल का पुराना experience है, this is what I put into OVO Radio. So this is how Kavya and Monica ka team works. Brilliant, brilliant. I think that's an inspiration to many, many other couplepreneurs as well, right? Kavya, मैं और मेरी पूरी फैमिली आपके शो एक आता था एक पहाड़ी ऐसा भी, इसके बहुत बड़े फैन थे. आपके इस इनिशिएटिव से आपने बहुत पॉपुलैरिटी भी गेन करी और उत्तराखंड को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इतने मेजर रेडियो स्टेशंस हैं देहरादून में. What challenges did you face when you decided to launch your own radio station? नहीं, चैलेंज ऐसा एज सच कुछ नहीं था. सिर्फ ये होता है क्योंकि हम डिजिटल मीडियम में ऐप पे आ रहे थे और वो फ्रीक्वेंसी मीडियम में आते हैं. चैलेंज सिर्फ एक होता है, दिमागी चैलेंज. इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आज से 20 साल पहले जब स्मार्टफोन लॉन्च हुए, स्मार्टफोन 20 भी नहीं, तकरीबन 12-13 साल, 2008-9 के आसपास लॉन्च होने शुरू हुए थे. 2002-3 के आसपास सेल्यूलर फोन जो नॉर्मल फीचर फोन है वो आने शुरू हुए. उससे पहले लैंडलाइन होता था. तो लोगों को ऐसा लगता था कि यार लैंडलाइन ठीक तो है, अभी मोबाइल खरीदेंगे, मान लो कहीं खो गया तो. फिर उसके बाद जब स्मार्टफोन आए तो लोगों ने कहा यार इसमें तो बटन ही नहीं है, अगर ये टच खराब हो गया तो तो ये क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपको आदत पड़ जाती है. सेकेंड चीज मैं ये कहूंगा कि आज हम हर चीज में मोबाइल है. मोबाइल मतलब मोबिलिटी, यानी कि हमारे फोन पे हमें खाना मंगाना है तो हमें उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो रेस्टोरेंट आपके घर आ सकता है आपके फोन से. जस्ट आपको ऑर्डर करना है. आपको बुकिंग के लिए उस होटल में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं. आपको अपनी टिकट्स बुक करने के लिए, अपनी बैंकिंग के लिए आपको बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. आज एक सब्जी वाला, फल वाला, गोलगप्पे वाला भी कहता है कि पैसे नहीं, एक काम करो पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो. तो हम वो रेवोल्यूशन चाह रहे थे. तो डेफिनेटली जब 1 साल पहले हमने कहा पहला डिजिटल रेडियो, तो लोगों ने कहा यार ऐप पे रेडियो कौन सुनेगा, वो तो फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं. फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं इसलिए क्योंकि उससे पहले कोई लाया ही नहीं, इस वजह से फ्रीक्वेंसी पे सुनते थे. अब जैसे आप पिछले 2 साल में ही देखिए लोगों का बिहेवियर कितना चेंज हुआ है. पहले हमें लगता था कि मूवी देखने के लिए सिर्फ थिएटर ही होते हैं, वहीं जाना होता है. Absolutely. में ओटीटी पे इतना कुछ हो गया, लोगों ने अपने घर को पिक्चर हॉल बना दिया है. बिल्कुल. तो हमारी वही बात है कि शुरुआत में थोड़ा सा लोगों को लगा कि यार ये कैसे होगा, मतलब लोग तो गाड़ी में सुनते हैं रेडियो. तो हमने फिर उस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करी. हमने कहा गाड़ी में देखिए आप उतनी देर ही सुनते हैं जितनी देर आप गाड़ी में. मान लीजिए आज संडे है या सैटरडे, आप नहीं सुन सकते फ्रीक्वेंसी बेस्ड रेडियो, बट हमारे रेडियो को आप रूम पे, होटल पे, ऑफिस में, घर में, बॉर्डर में. आज हमें खुशी होती है कि एवरी मॉर्निंग जब मैं शो करता हूँ -27 डिग्री में लद्दाख में, आईटीबीपी में पोस्टेड एक जोशी जी हर सुबह मुझे मैसेज करते हैं कि हम आज -27 डिग्री में सुन रहे हैं, आज -25 में सुन रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है. सीआरपीएफ में वहां छत्तीसगढ़ में बैठा जवान वहां से मैसेज कर रहा होता है. कोई यूएई में सुन रहा होता है, कोई एम्स्टर्डम से मैसेज कर रहा होता है, कोई बैंगलोर से कर रहा होता है, कोई वहां ठेठ नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली के गांव से महिलाएं जब जंगल जाती हैं
वो घास काटने जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे को लेडी का मैं बहुत बार जिक्र भी करता हूँ, कमला रावत करके उनका नाम है, नंदप्रयाग की रहने वाली हैं वो, और उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि क्या कहते हैं, ये जंगल के रास्ते बड़े सुनसान होते हैं और अकेलेपन का बड़ा वैसा महसूस होता है। थैंक यू आरजे काव्य और ओहो रेडियो को कि आपने हमारी लाइफ को इस तरह से बदल दिया है कि आज हम जब जंगल जाते हैं लकड़ी लेने तो हम ओहो रेडियो सुन रहे होते हैं। और वो एक हाथ पे मोबाइल पे ऐसे ऐसे डांस करते हुए, सर पे उन्होंने वो गट्ठर रखा हुआ था और कोई दूसरा उनका वीडियो बना रहा था और उन्होंने ये ट्वीट किया था। और परसों बताओ। वर्ल्ड रेडियो डे पे भी उन्होंने उस ट्वीट को वापस से रीट्वीट करते हुए, कोट लिखते हुए कि हमारे लिए तो रेडियो ओहो रेडियो है। तो अब आप समझिए कि एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड रेडियो जो सिर्फ देहरादून की 30-40 किलोमीटर पे सुनाई दे रहा है, और हाँ आज जी। हमने वो को इंटरनेट से ब्रेक कर दिया, वो नंदप्रयाग से लेके न्यूजीलैंड तक जो है। कई बार न्यूजीलैंड में एक दिन कोई गाड़ी में सुन रहा था, तो उसने, मैं सुबह 7 बजे स्टूडियो पहुंचा तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने देखा ही किसने भेजा हुआ है, तो वहां दिन हो रहा होगा शायद और हमारे यहाँ रात हो रहा था, तो वो गाड़ी में उसने ब्लूटूथ से ऑन कर रखा था और वो मस्त एकदम वहां न्यूजीलैंड में ओहो रेडियो सुन रहा है और उसने वीडियो बना के भेजा हुआ था। तो ये राइट। चीज है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब आदत लोगों को बदलती है तो उनको लगता है कि हाँ। और हर बिल्कुल। इन्वेंशन से पहले मुझे लगता है कि जो भी आप नया करते हैं उससे हाँ पहले जी। लोगों को ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक दिस वाज़ अ काइंड ऑफ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एक्चुअली। मैं इसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का नाम दूँगी कि रेडियो के स्पेस में इस तरह का ऐप लॉन्च करना और इस तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। इट्स ब्रिलियंट, वेरी गुड, वेरी गुड। अम, मोनिका, मैं आपकी वेबसाइट के थ्रू जा रही थी। आपका मोटो है, एक मैंने जगह मेंशन करा हुआ देखा, सोच लोकल, अप्रोच ग्लोबल। That caught my attention. Tell us something about this. Right. So I'll tell you, जब हमने ये बात करी ना, बिकॉज जब भी आप रेडियो की बात करते हैं, एक बार आप, अगर आप आज के मॉडर्न टाइम में देखिए ना, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेडियो है, बेसिकली वहां क्या हो रहा है ना, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट इनटू डिजिटल, राइट। आपको ये समझनी पड़ेगी कि रेडियो जो है वो बहुत ही लोकल प्लेटफॉर्म है, राइट। बिल्कुल। जैसे अगर आप, आज हम ओहो रेडियो चला रहे हैं, हमारे ओहो रेडियो का पूरा नाम ही है ओहो रेडियो उत्तराखंड, राइट। बिकॉज मैं यहाँ बैठ के उत्तराखंड के लोगों की बात कर रही हूँ, उत्तराखंड के लोगों से बात कर रही हूँ और उनके लिए बात हो रही है, राइट। राइट। अगर मैं कहीं बैठ के कहीं और की बात करने लगूँ, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट कि यार ये क्या हो रहा है, राइट। तो ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि रेडियो जो है वो एक लोकल मीडियम है, और वो हमें डे वन से क्लैरिटी है कि हम उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन, अगर आप ओहो का पूरा नाम या टैगलाइन देखिए, ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। कमिंग टू द हाँ जी। टैगलाइन हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली ये है, ये काव्य का ही इन्वेंशन था कि हम इसको ऐसे रखें कि सोच लोकल होनी चाहिए लेकिन अप्रोच ग्लोबल होनी चाहिए। भले ही आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट, बट हमारा मोटो है सिंपल कि हम लोकल लोगों के लिए काम करेंगे, लोकल लोगों के लिए काम करेंगे, और लोकल में ही हम एक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन when you talk about the standards, right, वो हम, अगर आप किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से आप मैच करोगे, we are not going to compromise on that, right। तो हम अपनी लोकल चीजों को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। हम उन, जैसे काफी ने जस्ट अभी कहा कि मैंने यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई न्यूजीलैंड में बैठ के बात सुन रहा है, या दुबई में बैठ के, या एनी पार्ट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट। सो दैट्स द लेवल। कल जब बात हो, राइट, तो एक उसकी बात होनी चाहिए। कल को बहुत सारी चीजें और ऐसी आएंगी, एंड वी करेक्ट। शुड सेट अ बेंचमार्क कि लुक व्हाट ओहो रेडियो इज डूइंग, राइट। कि सिर्फ राइट। लोकल लोगों की बात, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोकल लोगों को, लोकल चीजों को, लोकल प्रोड्यूस को एम्पावर करें, लेकिन एट द सेम टाइम there should be no compromise on the standards, right। तो हमारी अप्रोच एब्सोल्युटली। हमेशा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे रहेगी, लेकिन हम हमेशा बात लोकल चीजों की करेंगे। सो दिस इज दिस इज फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट केम इन। हम हमेशा अपनी राइट। सोच को लोकल रखेंगे, ठीक है, एंड हमेशा हमारा जो अप्रोच रहेगा वो हम, वी विल लुक टुवर्ड्स कि हमें कोई भी छोटी से छोटी चीज हो। अब यार देखिए, उत्तराखंड में अगर आप वैसे देखिए, फार्मिंग कितना बड़ा हाँ जी। एक एरिया है, राइट। सो इट्स लाइक दिस कि हम ये क्यों सोचे कि हमें यही और हम लोग जितना देखते ना यार, यहाँ पे इतना, मतलब स्पेशली व्हेन आई कम फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, आई एम नॉट फ्रॉम हियर, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि लोग बाहर होड़ मचाए हुए कि वी वांट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। व्हेन आई गो टू हिज प्लेस, राइट, और व्हेन आई गो टू इन-लॉज प्लेस, आई सी यार यहाँ तो सभी ऑर्गेनिक है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। राइट। तो दैट इज व्हाट इट इज, राइट। कि यही जो बातें हैं, राइट, जो लोकल चीजें हैं, और ये सारी वो चीजें हैं जिनको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड
पे है, ये ऑलरेडी है, बिल्कुल राइट, ऑलरेडी है। राइट. सो दिस इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट केम इन. एंड ऑल्सो इसमें खाली एक लाइन जोड़ रहा हूँ, जो हमारा रेडियो है ना, आप देखिए इंटरनेशनली जो आप गई होंगी या आपके लोग रहते होंगे, वहां पे इंटरनेट रेडियो कितना ज्यादा चलता है अब्रॉड में. बिल्कुल वहां हर बिल्कुल गाड़ी में इंटरनेट रेडियो चलता है. वहाँ फ्रीक्वेंसी बेस्ड रेडियो वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, खतरा होता ही है, तो वहां तो एग्जैक्टली इंटरनेट बेस्ड ही चलता है. तो जब हमने कहा कि सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल, यानी कि हम रेडियो में भी वो अप्रोच अपना रहे हैं जो इंटरनेशनली हो रहा है. हाँ, इंडिया राइट और उत्तराखंड के हिसाब से शायद ये थोड़ा जल्दी है, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा ये क्या हो रहा है. बट अगर आप वही यूएई में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, वहां तो तमाम सारे यस हजारों इंटरनेट रेडियो स्टेशन चल रहे हैं. तो ये है. बिल्कुल बिल्कुल. What an impact driven initiative of Oho Radio. Such, I mean, it's so wonderful to listen to your objective and mission actually. So काव्या एंड मोनिका, आप लाइफ पार्टनर्स होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं. हमारी शार्क टैंक इंडिया में भी हमने कई कपल ट्रेनर्स को विटनेस किया है, और हम अपने सर्कल में भी ऐसे कई स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स को विटनेस कर रहे हैं. सो एक क्वेश्चन, what according to you is essential in maintaining the personal and professional life balance in this scenario? किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है in building such a strong team like yours at work? यार मैं ऑनेस्टली बोलूं, लोग कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखा करो, कोई नहीं रख पाता है. मेरे को तो ऐसा लगता है घर वाली चीजें ऑफिस आ जाती है, ऑफिस वाली घर में पहुंच ही जाती है. बिकॉज देखो ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है, एक तो जैसे हमारा घर, तो जहां हमारा रेजिडेंस है राजेंद्र नगर में, वहां से बल्लूपुर चौक पे हमारा ऑफिस है हार्डली 1-1.5 किलोमीटर. ठीक है, मतलब Okay. 2-3 मिनट में हम पहुंच जाते हैं. अब होता क्या है, इतनी जल्दी, मतलब हम इतने अच्छे एक्टर नहीं हो सकते कि घर में आए और वो ऑफिस वाला बटन स्विच ऑफ हो जाए और यहाँ वाला Correct. ऑन हो जाए. वो तो कभी नहीं हो सकता. वो खाली कहने वाली बातें हैं, या तो लोग झूठी बोल रहे होते हैं मेरे ख्याल से कि हम कर लेते हैं. तो वैसा नहीं होता है. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको कुछ पॉजिटिव्स भी पता होते हैं, और कि यार ये इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है और ये मेरा है, अगर उसको मेंटेन करके चले. जैसे कई हाँ बार जी. हमारे एक दोस्त हैं, कॉलीग हैं ऑफिस में ही, तो सीनियर लेवल पे वो कई बार कह रहे होते हैं कि काव्य और मोनिका दोनों जो है ना, ये तलवार हैं और बहुत ही तेज तलवार है. बस दिक्कत ये होती है कि ये अंदर की तरफ आ जाती है, कई बार इनको बाहर को चलना है. कई बार, क्योंकि होता है, उसने कहा ऐसा होना चाहिए, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा होना अच्छा. चाहिए, आपस में ही हो गया, है ना. तो बोले Yes, ये yes. दोनों बहुत शार्प तलवार हैं और बहुत अच्छी हैं, बस इसको बाहर की तरफ को चलाना है, अंदर को नहीं चलाना है, कि खुद ही में एक दूसरे पे ही चलाने लग गए. और वैसे तो बट ये है कि आपको अपने प्लस माइनस मालूम होने चाहिए. Hmm. और ऑब्वियसली, मतलब मैं तो ये बार बार कई जगह में कह भी चुका हूँ कि अगर मान लीजिए मोनिका नहीं होती इस उसमें, तो शायद वो नहीं कहती कि चलो इसको करते हैं, तो फिर मैं हो सकता है ओहो रेडियो नहीं करता, या इस तरह से नहीं करता, कुछ और करता. तो वो तो Hmm. आपको एक सपोर्ट सिस्टम तो सबसे पहले तो घर से आता है. सही बात. कॉन्फिडेंस, जब आप बाहर Right. निकलते हो ना, तो मार्केट आपको कैसे भी ट्रीट करे, एंड ऑफ द डे तो आप घर आते हो. अगर घर पे बिल्कुल. भी मार्केट का ट्रीटमेंट मिला तो आप परेशान हो जाओ. घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं यार, चलो कर लो, क्या Right. होगा, कितना बुरा होगा, कितना गिरोगे, है ना. तो उस तरह से तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, और वो मेंटेन करके चलें तो फिर ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. एक दूसरे को स्पेस देना भी जरूरी है, एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को समझना जरूरी है, और एक दूसरे पे विश्वास करना भी बहुत जरूरी है. Right? अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जैसे आपने जो हाँ. सवाल पूछा, हाँ जी. बैलेंस, यार बैलेंस तो तब होता है जब दो अलग जिंदगियां होती हैं. ठीक है, मतलब जब आप ये कहो at this point of time, when Oho Radio, or let's talk about any startup, right? Hmm. तो आप इतना सब कुछ डिमांड कर लेता है ना, that Oho Radio is like a baby. ठीक है, Yes. वो डिमांड सो मच आउट ऑफ यू ना, कि वो कहने के लिए है ही नहीं कि क्या पर्सनल क्या प्रोफेशनल. वी डोंट नो, वी डोंट हैव संडेज, वी डोंट हैव मंडेज. जैसे आप Hmm. कॉर्पोरेट्स में काम करते हो, राइट, यू हैव फिट पैटर्न्स, यू गोइंग टू वर्क फॉर 5 days, 2 days आपका ऑफ होगा, राइट, Right. एंड days ऑफ, एंड देन योर साइकिल स्टार्ट्स अगेन ऑन मंडे, एंड देन फ्राइडे को एंड होता है, देन अगेन वीकेंड, और इस तरीके से चीजें चलती है, राइट. बट व्हेन यू हैव अ स्टार्टअप, ऐसा Hmm. कुछ नहीं होता. It's not a fancy word, right? Right. देखने को लगता है कि अरे यार इतना कुछ हो रहा था, जितना कुछ हो रहा है ना, उससे ज्यादा it is taking out of us from a personal life, right? Because let's Yes. get realistic, at this point of time, it's like this key, you have to dedicate 24/7. Correct. And it's like this, there's nothing, right? This place, this startup, this is actually demanding everything from us, right?
तो वहां पे तो क्वेश्चन ही नहीं होता कि इसको बैलेंस कैसे करें, बैलेंस तो होगा ना जब इट्स लाइक दैट, राइट। सो राइट अभी के लिए लाइक हाँ, बट ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक फेज आ जाएगा जब यहाँ पे हमें लगेगा कि चीजें आर सेटल और आर सेटलिंग, तब ऑब्वियसली देन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इनटू पिक्चर, एंड ऑब्वियसली तब हमें दिस इज इम्पोर्टेंट राइट क्वेश्चन। यू कैन नॉट बी ऑलवेज रनिंग प्रोफेशनली, कभी ना कभी आपको एक पॉइंट पे आके ये भी सोचना पड़ेगा ना, व्हाट आर वी प्लानिंग पर्सनली, यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल लेकिन जब हम अभी हम रेडियो की बात कर रहे हैं या एक स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस प्लेस नीड्स बोथ ऑफ अस एंड दिस प्लेस यस नीड्स आउट ऑफ अस। तो अभी के लिए ये सिचुएशन है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो मोनिका, जैसा कि आपने बताया था आप एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, मेरे फादर भी एक्स डिफेंस ऑफिसर रह चुके हैं, सो आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे कई वर्क एथिक्स उस एनवायरनमेंट से गवर्न होते हैं। सो आप सीईओ हैं इस वेंचर की, हाउ हैज दैट इन्फ्लुएंस्ड योर वर्क प्रिंसिपल्स हियर? Right, like actually a difficult question. See, यार obviously एक जैसे जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, राइट, वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपको लाइफ में, राइट। सो ऑफ कोर्स जैसे मेरे फादर आर्मी में रहे हैं, या मैं वैसे भी पर्सनली बात करूँ जैसे पेरेंट्स की, तो ऑब्वियसली आई लुक अप टू माय फादर, ठीक है। जैसे मेरे फादर इज लाइक बीइंग इन आर्मी और वो सारी चीजें हैं, है ना, बड़ी कामनेस होती है मेरे फादर, स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी आर्मी पर्सन, आई एम टॉकिंग टू माय फादर, राइट। तो जैसे मैं उनको देखती हूँ, राइट, जैसे कई बार मैं कहती भी हूँ, आई पुट दिस ऑन अक्रॉस द टेबल ऑल्सो, जैसे किसी ग्रुप में हम बैठे हैं जो भी, कि मेरे फादर जो है वो एक ऐसे इंसान है कि आप कोई भी वियर्डेस्ट चीज भी बोलोगे ना दुनिया में, आई एम थिंकिंग लाइक दिस, माय फादर इज गोइंग टू लाइक इज गोइंग टू बी लाइक इज गोइंग टू टेक अ सेकंड, ओके, थिंक अबाउट इट एंड देन ही इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या हो गया, आई हैव नेवर सीन हिम इन दिस मोड, नेवर एवर, ठीक है। एंड व्हेन आई एंड काव्य वर्क एज अ टीम, राइट, एंड ऑफ कोर्स अदर पीपल आल्सो, सो इफ आई सी तो वो मेरे अंदर डेफिनेटली आती हैं चीजें, राइट, कि अगर कोई भी चीज हो रही है, राइट, इन ऑफिस ऑब्वियसली देयर आर फ्यू टाइम्स व्हेन एवरीबॉडी इज इन पैनिक मोड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पैनिक। मेरे को नहीं समझ आता है वो पैनिक की, ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू रनिंग आउट ऑफ टाइम और यू रनिंग आउट ऑफ समथिंग एंड इट हैज टू हैपन राइट नाउ, बट देन आई एम लाइक कि इवन इफ यू डू पैनिक, तो वो सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू रिवर्स, राइट, वो सिचुएशन इज स्टिल द सिचुएशन, नाउ द पॉइंट इज कमिंग एट पॉइंट एंड यू लाइक कि अब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है एंड व्हाट इज नेक्स्ट, राइट, आप इसको करते रहो, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, एट द पॉइंट इज की नाउ इट इज द सिचुएशन, दिस इज द रियलिटी ऑफ द मूवमेंट, नाउ इसको फिगर आउट करना है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब ये हो चुका है, ये हो चुका है, यू कांट, so all those things actually come into me and obviously ये हमको बहुत बैलेंस करता है, because I know Kavya is like this front face and Kavya को हमेशा कैमरे के आगे रहना पड़ता है, ये उसको गुरु मीटिंग and this thing, and of course he's on a go, he has a lot of pressure, right, but still मेरे को ऐसा लगता है कि okay, just hold on, है ना, रुको 2 मिनट रुको, and we are going to figure this out, we are going to sort this out, and at the end of the day आप भी वही चाह रहे हो जो मैं चाह रही हूँ, मैं भी वही चाह रही हूँ, yes, the technique is different, so वो जो है वो मैं I bring it on the table both for OHO Radio and of course for us personally also to balance out things. Yes, this is what it is. So you are more of a problem solver, right? Problem solver दोनों ही हैं, ऐसा नहीं है. Kavya also doesn't stick on to, yeah, हमारी टीम में भी if I see ना at this point of time for tell about my team ना, अभी के लिए टाइम पे हमारी टीम ऐसी है which is हम जो कहेंगे ना जिस टीम हम चाह रहे होते हैं, we have less people, right, because of COVID, lot of बिल्कुल बिल्कुल आइडियल टीम, ठीक है, परफेक्ट टीम है हमारी, राइट, उसमें भी एवरीबडी वांट्स टू सॉल्व, लेकिन ये है कि सबके क्राइटेरियाज अलग अलग है, कुछ लोग शायद उसको पैनिक में सॉल्व करेंगे, कुछ लोग उसको रिलैक्स होकर सॉल्व करेंगे, कुछ लोग ऐसे, तो दैट्स लाइक द थिंग, राइट, सॉल्व सभी करना चाहते हैं, राइट, सबके तरीके अलग अलग हैं, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं थोड़ा सा वैसे रहती हूँ कि इसमें पैनिक करने का कुछ भी नहीं है, लेट्स फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या है एंड इसको सॉल्व कर, राइट, मतलब उसमें 2 4 5 मिनट 7 मिनट डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम की लग जाएगा कि कितना लगेगा, लेकिन जो पैनिक में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट, ऐसा रहता है, राइट मोनिका। काव्या, आपने बताया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे,
उसके बावजूद आपका इतना सक्सेसफुल करियर रहा है एंड यू हैव वन सो मेनी अवार्ड्स फॉर योर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। हमारी करंट जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? पहली बात तो आपने गलत कहा है, एवरेज। एवरेज तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए। एवरेज तो वो होता है ना जो 40-50 नंबर ले आता है। सो मैसेज तो क्या है, मतलब मैं तो हमेशा ना एक ही चीज कहता हूँ कि आपको तरीके निकालने। देखिए, लाइफ में कोई आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं करता है, आप जो अपने लिए सोचते बिल्कुल। हैं वही होता है। आपको ये मालूम खुद में होता है। कुछ लोग ना खुद से झूठ बोलते हैं कि उनको ये मालूम है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो जबरदस्ती उस काम के पीछे भाग रहे होते हैं। जैसे बिल्कुल मुझे सही। पता था कि पढ़ाई वगैरह में नहीं हूं और मैं नहीं कर पाऊंगा, म्यूजिक में इंटरेस्ट है और ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली इसमें भी कर जाऊंगा, लेकिन मैंने वो जो इंटरेस्ट वाली चीज थी उसमें मैंने बिल्कुल जी जान लगा दी। उसमें मेरे हम्म। पेरेंट्स की से बात करूं, अब वो बागेश्वर ही रहते हैं। आप सोचिए 2007 में किसको पता होगा बागेश्वर में कि रेडियो क्या होता है। राइट। 2018 में पहला प्राइवेट चैनल खुला देहरादून में जो मैंने लॉन्च किया था उस टाइम पे, तो 2007 में तो वैसे ही नहीं पता होगा। और एक सोचिए 16-17 साल का बच्चा कह रहा है कि मुझे ये करना है, तो उसकी कौन ही सुन हम्म। लेता है। लेकिन बिल्कुल। उसको खुद पे होना चाहिए कि नहीं बॉस, मैं ये करना चाह रहा हूँ और मैं ये करूंगा। तो मैं यही कहता हूँ सब लोगों से कि आपको मालूम होता है कि आप क्या कर सकते हैं, हम्म। आप। तो आपको जो है वो करना है जो आप कर सकते हैं, उसके लिए फाइट करनी है और उसको प्रूव करना है और हरदम करना है। मैं आपको बताऊं, मेरा नॉर्मली क्या होता है हमारे रेडियो के फील्ड में, ज्यादातर रेडियो जॉकीज एक ही शहर में सालों साल निकाल देते हैं। जितने हम्म। भी बड़े आरजेस हुए हैं, आप दिल्ली में राइट। किसी आरजे का नाम लीजिए, बंबई में लीजिए, अहमदाबाद, लखनऊ, वहां वो आरजे 10-12-14 साल एक ही शहर में काम करते रहते हैं, तो होता ही है कि राइट। आपको याद हो जाता है उनका नाम। मेरे साथ हम्म। क्या हुआ, मैंने 2-2.5 साल सबसे पहले करियर शुरू किया, जैसे जोधपुर गया, मैंने 2.5 साल किया वहां पे। मुझे लग गया था कि ये शहर से मुझे इतना ही मिल सकता है, मतलब मिल सकता है, मतलब कि मैं उस चीज में हो चुका था कि ओके यार, अब मैं इतना ही यहाँ पे डिलीवर कर पाऊंगा। एक हर शहर का अपना एक पोटेंशियल होता हाँ है ना, जी, हाँ जी। करने का और जी। देने का। तो देन मैं वहां से मूव होके कानपुर पहुंच गया। कानपुर थोड़ा हम्म। बड़ा शहर है और वहां पे मैंने उस तरह का काम किया 3 साल। फिर वहां से मूव होके मैं जयपुर चला गया, वहां पे मैंने ढाई हम्म। साल काम। देन मैं कैलकाटा गया, कैलकाटा 1 साल, थोड़ा सा वहाँ लैंग्वेज वगैरह का भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम्म। पार्ट जो बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पे लोकल लिंगो को वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी। और तो मेरे को उतना नहीं वो था, तो मैं 1 साल करके देन दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आया, दिल्ली तो मैं मुश्किल से रहा हूँगा शायद 8-9 महीने। मतलब 3 महीने मैंने से काम किया और 3 महीने बाद मैंने उस वक्त पे जो सीईओ होती थी उनको बोला भैया मुझे नहीं करना है। हम्म। एंड वागन उस टाइम पे नए रेडियो स्टेशन खोल रहे थे वो लोग, जिसमें देहरादून भी था, जम्मू था, अमृतसर, पटना, चंडीगढ़। तो मैं उस टीम में चला गया जहाँ पे हायरिंग हो रही थी, उन लोगों को ट्रेन किया जाता था, फिर हम लोग वो स्टेशन को लॉन्च करते थे और उस तरह से। एंड फिर हम्म। देहरादून जब हुआ तो ठीक है, मैंने कहा देहरादून तो अपना उत्तराखंड ही है, घर ही है पहाड़ों में, तो ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम्म। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एवरी 2-2.5 साल में मुझे वापस से प्रूव करना पड़ा खुद को हर शहर में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कलकत्ता वाला मुझे नहीं जानता था, जयपुर वाला नहीं जानता था, कानपुर वाला नहीं जानता था। मेरे खुद के पहाड़ में आप सोचिए ना, मैं 10 साल रेडियो करके आ चुका था। उत्तराखंड, हाँ। देहरादून मुझे नहीं जानते थे, तो हाँ ऑब्वियसली जी। वो डे वन से मैंने वापस से खुद को कि यार फिर से उतनी मेहनत करो जो आपने 2008 में करी है। जी। तो उसके रिजल्ट्स भी निकलते हैं डेफिनेटली जब आप मेहनत करते हो, और उससे आपको अपना पोटेंशियल मालूम चलता है। एंड हम्म। फिर जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा भी कि वो एक पहाड़ी ऐसा भी इतना सक्सेसफुल शो था, हम्म। उत्तर का पुत्र, मेरा यूट्यूब चैनल हाँ जिसपे हम जी। इंटरव्यू करते थे, वो सब हो चुका था। मेरे को तो उस चीज को एंजॉय करना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन फिर हमने क्या किया, फिर से ओहो रेडियो ले आए, यानी फिर से खुद के लिए चैलेंज। 12 हाँ। 13 साल एक फील्ड में करने के बाद तो आदमी सोचता है हम तो प्रो हो चुके हैं, अब तो डॉक्टर बन सेटल हो जाना चाहिए। जाने। बिल्कुल। यू नो तो बिल्कुल। फिर से आप प्रूफ करने चल दिए कि नहीं, अब हम कुछ और तरह का काम करेंगे, नया हम्म। रेडियो होगा, ये होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, उससे क्या होता है, एक तो आप खुद को री इन्वेंट कर पाते हैं, आपको अपना पोटेंशियल पता चल पाता है। इसलिए बिल्कुल। मैसेज सिंपल सा है, खुद के लिए चैलेंजेस, खुद के लिए टारगेट्स, खुद के लिए एक लक्ष्य बनाइए, उसको पा लीजिए हम्म। और उसके क्लोज हैं एक नया टारगेट बना दीजिए। क्योंकि जब आप बिल्कुल। अचीव कर लेंगे ना, अचीव करने के बाद वो खत्म, जैसे आप मसलन आप एक गाड़ी खरीद रहे होते हैं ना, जब हाँ तक वो नहीं आ रही होती, आप सोचिए ना उसकी रिसर्च में आप 6-8 महीना लगा देते हैं। जिस दिन वो जी। आती है बहुत अच्छी लगती है, आप 4-5 ड्राइव पे जाते हो, पहले 5 दिन आप उसको इतना नीट एंड क्लीन रखते हो कि मतलब लगता है पता नहीं क्या है, उसके बाद वो वही हो जाती है उसकी हालत। तो आई थिंक करेक्ट। यही आपकी लाइफ में भी होता है कि जब टारगेट को अचीव करने का, जो पाने की
मेहनत होती है वो बहुत अलग होती है, और पा लेने के बाद वो नॉर्मल सा लगता है। तो आप उससे बिल्कुल। बोर, इसलिए आप अपने लिए टारगेट बदलते रहिए, उसी फील्ड में कीजिए, या जो भी करना है बढ़ाते जाइए, उनको चेस करते जाइए, फिर कुछ करिए, फिर कुछ करिए। तो आई थिंक उसका मजा भी है और आपको अपना पोटेंशियल पता चलता है, बेसिक ये। बिल्कुल, बिल्कुल। That's such a lovely message from your side, काव्य। मोनिका, वैसे तो मैं मानती हूँ कि एंटरप्रेन्योर ही होता है, चाहे वो मेन हो या वुमेन। बट इंडिया में जहाँ पेट्रियार्की आज भी है, वहां पे वुमेन एंटरप्रेन्योर के रोल में जगह बनाना अपने में ही एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। सो मोनिका, आप एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। What is your success mantra, and what important message do you have for our women entrepreneur segments and section? Right, right. यार जैसे आपने ना पेट्रियार्की की बात करी ना, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में स्पेशली अभी हमें लाइक कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, राइट, जो हम कवर करेंगे और उसके बाद में मे बी और मे बी नॉट वी गेट कम Yes, टू अ पॉइंट जहाँ पे वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, जेट बिल्कुल। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और लाइक दिस, लाइक अदरवाइज आल्सो, राइट, नॉर्मली आल्सो, राइट, ऑफ कोर्स वो चैलेंज है, ठीक है। इसमें ना देखिए, एक सिर्फ ये कहना है इस चीज में, इट्स सिंपल एंड एवरीथिंग बिगिंस एट योर होम, जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। तो जो ये चेंज है, दैट एक्चुअली बिगिंस एट होम। यार आई टेल यू, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मतलब चीजें आर वेरी मेसी, ठीक है। वहां पे लड़कियां पढ़ती नहीं है या उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, एंड बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं यार सोसाइटी में, ठीक है। जब मैं देखती हूँ ना, इनफैक्ट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, माय फादर को हमेशा देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट वाज कमिंग टू हिम कि यू नो इट्स दैट इट्स टाइम यू गेट देम मैरिड, भले आपके अभी यू आर नॉट इवन 18 आल्सो, राइट, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सोसाइटी इज गोइंग टू कम एंड से। एंड माय फादर एंड स्पेशली माय मदर, माय मदर वाज लाइक दिस कि मेरे बच्चे बस पढ़ लें, राइट, माय किड be educated and they should be educated from a good school, right? Right. They should focus on studies, जो हम लोग नहीं कर पाए वो ये लोग, इनको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, right? Being we are three sisters, and ये तो it's like a taboo from the place that I come from, but still मेरे parents का, especially my mother was like this कि इनको पढ़ाना है and इनको आगे बढ़ाना है, and मेरे फुल सपोर्ट। माय फादर डजंट इंटरवीन इनटू दिस थिंग, बट मेरी मदर जो भी डिसीजन लेती है अपने बच्चों के लिए, एंड माय फादर इज लाइक कि यस आई एम बैकिंग यू अप। पता क्या है, मैंने घर में वो चेंज देखा कि मेरी मदर, मोस्ट ऑफ द डिसीजन हमारे घर में मेरी मदर लेती है, एंड माय फादर बैक्स हर अप, ओके। एंड कोई कई बार डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं, बट ही इज लाइक कि ओके, इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, दिस इज वेयर द पेट्रियार्की हैज डाइड इन माय फैमिली, राइट। तो ऑफ कोर्स, तो ऑब्वियसली वो एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं जैसे अभी आपने जो थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था ना, वर्क लाइफ बैलेंस वाला, आई टेल यू कि हमारे केस में भी, राइट, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी बहुत ओपिनियटेड हूँ, ही इज आल्सो एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग का दोनों का दिमाग अलग तरीके से चल रहा है, राइट। हम एक पॉइंट पे आएंगे, बहुत मुश्किल बात है, और ऐसा हर किसी में होता है। ये मतलब अगर पीपल से ना, नहीं हम तो एक ही चाल चलते हैं, that is not possible. Two people who have their own ideology, who think in a certain pattern, they are point जहाँ पे they are running parallelly, they are never intersecting, right? तो जब उस पॉइंट पे आप आते हैं, right, it is important, right, कि तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी ऐसा होता है कि काव्य लाइक कि ओके आई गिव अप, यू टेक अ कॉल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स, लेकिन ये इसमें नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई वैसा मुद्दा है, इसमें यहाँ पे ये मुद्दा है कि लाइक कि ओके, लाइक आई रिस्पेक्ट यू, दिस थिंग, ही आस्क्ड मी फॉर ओपिनियन। एंड ये जो घर से छोटी छोटी चीजें शुरू होती है ना यार, कि आप पूछो, अगर आप मान लीजिए आप घर पे एक स्कूटी लेने जा रही हैं, लेट्स से कि घर की कोई चीज जा रही है, फ्रिज लेने जा रहे हैं, इफ योर सन हैज अ से इन दैट, योर डॉटर शुड हैव अ से इन दैट। यस, एब्सोल्युटली। चीजें होती हैं। एंड जहां तक नहीं यार एंटरप्रेन्योरशिप की बात, मुझे ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक घर पे जो भी आसपास है, अबाउट हस्बैंड और वाइफ, चाहे आपकी मदर हो, फादर हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, वी नीड टू डेवलप एनवायरनमेंट जहाँ पे वुमेन सेफ एंड वुमेन फील एम्पावर्ड कि यस, अगर मेरे दिमाग में एक डिसीजन है,
आज काव्य के दिमाग में आता है कि मुझे एक डिजिटल रेडियो खोलना है, राइट? एवरीबडी इज भले ही समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एवरीबडी सेज ओके यू गो अहेड एंड डू दैट, राइट? Tomorrow when you and I have these kind of thoughts in mind, तब you know everybody, चाहे फैमिली में कोई भी हो, everybody needs to come in front and say कि we support you no matter what. देखा जाएगा क्या होता है, राइट? है ना, देख लेंगे. So that's the kind of you know वो आना. And of course मतलब जैसे आपने शार्क टैंक की बात करी, women entrepreneurs need to come this thing, right? आज मैं I am running a venture जिसमें I am a secondary partner to Kavya, right? Tomorrow अब हमारा प्लान चेंज हो रहा है धीरे धीरे. Tomorrow we are going to work on an entrepreneurship idea जो मैं ड्राइव करूंगी, and Kavya is going to be the secondary partner into that, right? So already process में है. Yeah, so you guys are already on those thoughts, because for me it's like this कि yes I have मतलब आपको अपना सपना जीना है, I am backing you up. And जहाँ पे जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा उसका आंसर ये है कि जब ये रोल रिवर्सल हो जाए, राइट, जब ये बात उल्टी हो जाए कि अब मुझे अपना करना है, राइट, एंड इफ द अदर पर्सन backs you up, this is where the change start. If he doesn't, a lot of question needs to be answered and a lot of question needs to be asked, right? So this is what my thought on this. That's great. Lovely, Monica. So thank you so much, Monica and Kavya. We wish you both great success ahead, and we hope to see OVO to be Uttarakhand's biggest media and production brand that promotes Uttarakhand's culture and tradition and be a platform that contributes to the society. Thank you so much, Monica and Kavya, for taking out time from your busy schedule and for being with us here today. Thank you for having us. Thank you very much.